आप लोग प्लीज याद दिला दिया करें मुझे। Okay, the review of today's lecture is derivation. In this lecture we have to find out the derivation. इससे पहले जो lecture थे उसमें हमने numerical values निकाली थी direct, but we need to set a standard equation ताकि आपको बार बार वो complete derivation ना करना पड़े. Whenever you need, you can apply that equation directly. And simple understanding is that to select a high value inductance, in order to know optimum value of the inductor, we must need to derive mathematical equations. Yes, so these are thus in this topic it is the time to derive a mathematical equation for a buck converter. For this, first we have to find equation for the following terms. In order to get the mathematical equations, we have to first find out the average current, maximum current, minimum current, ripple current, and then the minimum value of the inductance L. So starting with this one, so if we see in this figure, the output is basically the average output will be I maximum plus I minimum divided by 2, and according to Ohm's law, I is equal to V by R. So this one, and here I maximum plus I minimum की value को मैंने rearrange कर लिया, so we end up with 9.8 equation. When the switch is off with the equivalent circuit इस तरह बनेगी. In this equivalent circuit, ID is basically I out, and I out is basically the inductor voltage, because this resistor and this inductor both are in parallel. So V out is equal to VL. Here we can say VL is equal to V out, and by the physics of the inductor, we know the inductance voltage is equal to L di derivative of the current, output current. And this we rearrange this one, di upon dt is equal to V out upon L. And this is because we are not assuming the curve, but we are just assuming the two distinct points, and that makes a straight line. So we can change derivative equation by this differential, the del equation. So we have done this one, and del I out is equal to delta t, and here delta t, del I out is basically is because for the off period में del I out I maximum minus I minimum है, I maximum minus I minimum, and V out upon L del t. Del t is basically for this output. So, and this output, the time is t off, so we have mentioned t off. So this is equation number 9.9. We found two equations, 9.8 and 9.9. If we add these two equations, probably we will get either of the values, I maximum or I minimum. So adding these two equations, so I max this one 9.8 and this one 9.8, हमने 9.9 को दोबारा यहाँ पर लिख दिया है और इसको हमने ऐड किया तो we end up 9.10 equations. Okay. So similarly, अगर इन two equations को मैं subtract करूँगा, so we have written again 9.8 and 9.9, and but this time we are going to subtract. So I maximum or I maximum cancel out हो जाएंगे, and we will end up with this value. And here we can find the I minimum value. So we now derive the equation for the I minimum and the I maximum. I minimum is with equation number 9.11. The peak to peak ripple current, we can also do peak to peak basically ripple current is I maximum minus I minimum. Yahi basically, this is the peak to peak reverse current, and this equals to V out L off. So this is given new equation 9.12. The average diode current only for T off time is, we know that the diode current for diode current is only valid when the diode is off. Sorry, diode current is only valid when the switch is off. If the switch is off, this is disconnected and the only loop remain is this one. So in this case, V out is equal to VL because R and L are in parallel, and ID is equal to I out. So we can say here that diode current is equals to output current. That's right. Okay. In this case, diode current is equals to output current, but this diode current is a function of this time.
The more the time, the more the diode current. So this तो diode current जो है basically output current है, but diode current is a function of the t of time. Please remember this one. So the diode current is basically equals to I out, but is the function of the t of time. And in order to know the average diode current, हम इसे क्या करेंगे? Total time period से divide कर देंगे. So we will end up with the diode equation. This is equation number 9.13. The least CCM condition can be achieved by setting minimum output current to 0 from equation 9.11. Hello, 1, 2, 3, hello. Hello, yes, right. Okay, so these are basically very simple, but we need to understand this one. Otherwise, you will mix up and you will have to mess with t of time, t on time, blah, blah, blah. So please try to understand it. These are very simple and just basic mathematics. So the least CCM condition can be achieved when by setting minimum current to 0, as we discussed these things before. So now from 9.11, this minimum value is set to 0, and we calculate this one. Why we set to 0? Because we want to know the minimum condition for the CCM mode of operation. CCM mode of operation के लिए minimum current जो है वो 0 होता है. तो we set 0 and we rearrange this one. So 2L and L is this. So 9.16, this is the equation. This is the final equation. This ensures that if for this buck converter, if you use this equation, then you will find out the inductance value. So this inductance value will guarantee you कि आपके पास जो आउटपुट करंट है वो CCM मोड ऑफ ऑपरेशन होगा. बट इट्स पॉसिबल कि ये आउटपुट करंट आपका हो सकता हो ये किसी लम्हे 0 पे टच कर सकता है, क्योंकि वी सेट टाइम मिनिमम इज इक्वल टू 0. अगर आपको ये आउटपुट करंट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो आप क्या करेंगे कि इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 मिली हेनरी आई है, आप इस इंडक्टेंस की वैल्यू को 20 मिली हेनरी कर सकते हैं. सो यू विल बी ऑन द सेफ साइड. अंडर सच कंडीशन आई मिनिमम की वैल्यू 0 पे टच नहीं करेगी. दिस इज द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? I have to take attendance now. So it's only 17 now. So we have to download attendance list. ये जितने भी 17 है ये मेरे पास आ जाएंगे as present. ठीक है? So I have taken the attendance. So buck converter हमने ये derivation निकाल दिया, सारी equation हमने निकाल ली. So how many equation we find out? I 9.8, this one 9.9, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.11, again it's recalled, and the final is 9.616. So now based on these derived equation, we can solve some examples. So buck converter example chapter 9. This is example number 9.4. It says that draw करें एक circuit diagram of a buck converter using following components. कौन सी component है? BJT NPN transistor आपको use करना है switch की जगह पे, and this transistor is being operated at 100 Hertz. The frequency is given to you 100 Hertz.
T on time is 4 millisecond. Out, all these values are given. So आप सबसे पहले and find out क्या करना है, एवरेज करंट निकालना है, इनपुट करंट निकालना है, डायोड करंट निकालना है, और आपको कहा गया है कि ड्रॉ ऑल्सो आउटपुट करंट वेव फॉर्म अप टू 2 टाइम पीरियड, स्टेट इफ इट इज सीसीएम और नॉट। बताना है कि एक एग्जांपल है, ये बहुत सारी वैल्यूज जो गिवन है, ये सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मेरा कर्सर गायब हो रहा है यार। ओके, to draw a circuit diagram of a buck converter, okay, that is circuit diagram मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया? Okay. हमने ड्रॉ किया है लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ किया। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अ बक कन्वर्टर। डीसी इनपुट वोल्टेज है, इट इज सेट कि आप बीजेटी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें, तो और एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें, तो हियर इज द कॉमन, हियर इज द बेस एंड द कलेक्टर, एमिटर, बेस एंड ऑपरेटिंग एट 100 hertz। इंडक्टेंस वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू यू, आर की वैल्यू प्रोवाइडेड है, इनपुट की वैल्यू शायद प्रोवाइडेड होगी। लेट्स सी वंस अगेन। सो वी हैव ड्रॉन द बक कन्वर्टर सर्किट। इसमें क्या पूछा गया आपसे, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। बीजेटी ट्रांजिस्टर यूज करें, टी ऑन टाइम 4 मिलीसेकंड है, टी आउट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, पीक टू पीक करंट वेरिएशन 4 एम्पियर, इनपुट इज 200 वोल्ट, मिली हेनरी 500 मिली हेनरी। फाइंड आउट एवरेज करंट, जिस चीज मालूम करना और ये पता करना है कि क्या ये सीसी मोड ऑफ ऑपरेशन में है या नहीं है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट, सेकंड ड्रॉ द इनपुट वोल्टेज जस्ट आफ्टर द ट्रांजिस्टर। लेट्स सी। अच्छा, इन्होंने बताया कि हमें पहले, सबसे पहले हम ये करेंगे, और टाइम पीरियड इज गिवन टू यू, टी ऑन दिया हुआ है ना। ओके, तो टाइम इज 1 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू 100 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड इज 10 मिलीसेकंड। इसमें से 10 मिलीसेकंड टोटल टाइम पीरियड है, और ऑन टाइम कितना है, 4 मिलीसेकंड है। सो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिलीसेकंड। दैट्स राइट। तो टी ऑन इज 4 मिलीसेकंड, टी ऑफ इज 6 सेकंड। टॉ क्या होता है, जैसे कैपेसिटर में टॉ इज इक्वल टू आरसी टाइम कांस्टेंट, इसमें इंडक्टर सर्किट में एल बाय आर टाइम कांस्टेंट। एल इज गिवन टू यू 0.5 हेनरी, आर की वैल्यू आपके पास 4 है। सो टॉ की वैल्यू कितनी, एल बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 120 मिली सेकेंड, एंड टोटल टाइम पीरियड कितना है, 10 मिली सेकेंड। तो in this condition 10 millisecond is very less as compared to the tau। so ये tau की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, तो tau is greater than t। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीसीएम मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है टाइम पीरियड से, और tau is very greater than t। Thus, this buck converter operates in CCM mode of operation. Now हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट है इस जंक्शन पे, ये देखें, यहाँ पर एक जंक्शन बनाया गया है, सॉरी, इस पे 0.1 है, दिस जंक्शन इज 0.1। हमने इस 0.1 पे वोल्टेज एट 0.1, इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव टू ड्रॉ द वोल्टेज वेवफॉर्म एट 0.1। इसमें क्या होगा, इनपुट कितना गिवन है, मुझे सही से याद नहीं कितना था, शायद 200 वोल्ट था। Input is 200 volt. Okay, so if the input is 200 volt, तो यहाँ तो ऑलवेज 200 वोल्ट होंगे, इस जगह पे कितने होंगे, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा 200 वोल्ट होंगे, जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा यहाँ पर इसकी वजह से वोल्टेज नहीं होंगे, लेकिन बैक वोल्टेज यहाँ पर होंगे। सो वी हैव टू ड्रॉ द waveform, voltage waveform at 0.1 due to this circuit। so इसका टाइम पीरियड कितना है, 10 मिलीसेकंड है, वी हैव कैलकुलेटेड बिफोर। चूंकि इन्होंने बताया कि 2 टाइम पीरियड तक आप वेवफॉर्म ड्रॉ करें, तो एक टाइम पीरियड ये है, दूसरा टाइम पीरियड, तो वी हैव कंसीडर्ड द 2 टाइम पीरियड साइकिल। तो जब इसमें जो टी ऑन टाइम है वो 4 मिलीसेकंड है, टी ऑफ टाइम है 6 मिलीसेकंड, तो 4 मिलीसेकंड के लिए
यहाँ पर वोल्टेज P1 पे रहेंगे ड्यू टू दिस सप्लाई। ठीक है, वो कितने हैं? 200 वोल्ट है। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, 6 मिली सेकेंड। सो वी नो कि दिस इज द voltage at this point and it's basically इस फ्रीक्वेंसी की वजह से 4 मिलीसेकंड के लिए ये ऑन रहेगा वहां पर वोल्टेज, और 4 मिलीसेकंड के लिए ये 6 मिलीसेकंड के लिए दिस ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑफ। सो दिस इज द वेव फॉर्म एट पॉइंट 1। इफ अगर आप वेव फॉर्म एट दिस पॉइंट ये निकालेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा 200 वोल्ट का। आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 200 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इज ऑलवेज अवेलेबल। स्विचिंग यहाँ पर हो रही थी, इसके बाद वोल्टेज जो है ना चॉप होंगे, on off is the right. So we know the equation for the Imax from the previous. Imax is equal to this one. नहीं, ये हमने पता है क्या है, it's not Imax हमें यहाँ पर किस तरह निकाली गई है। ओके, ये बताया गया है यहाँ पर कि अच्छा we do something more here. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो I maximum है उसमें रिपल कितना है? 4 एम्पियर का। सी हियर, पीक टू पीक रिपल इज 4 एम्पियर और आई और 20 एम्पियर है, ठीक है ना। पीक टू पीक इज 4 एम्पियर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आउटपुट की वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में पीक टू पीक कितना है? टोटली पीक है ये ना, पीक टू पीक वैल्यू 4 एम्पियर, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सो वी विल एंड अप विद आउटपुट की वैल्यू 20 है और पीक टू पीक वेरिएशन 4 एम्पियर है, लेकिन एवरेज से ऊपर का कितना है? 2 एम्पियर। सो वी विल डिवाइड बाय 2। सो 22 एम्पियर इज आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। सो 18 एम्पियर इज, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 4 मिली सेकेंड ऑन पीरियड है। ऑन पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? मिनिमम 18 एम्पियर से और इट विल टच टू 22 एम्पियर से यहाँ पर टच हो जाएगा। So this is the I minimum value, this is the I maximum value. And if we continue this one, चूंकि ये आउट कौन सा करंट है? आउटपुट करंट है। नहीं, सॉरी आई एम रॉन्ग। देखिए ये जो ड्रॉ किया गया है ना, ये इनपुट करंट को ड्रॉ किया गया है। ओके, इनपुट करंट। ओके, सो अगर आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जब ये ऑन होने का मतलब ये हो गया कि शॉर्ट सर्किट है, तो आई इनपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट, राइट। जब ये ऑन है इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो इस कंडीशन में देखें पाथ किस तरह से बनना है, ये डिस्कनेक्टेड है। ये इस कंडीशन पाथ इस तरह बनना है, आई आई इज इक्वल टू सीरीज में। सो आई आउट आई इन इज इक्वल टू बेसिकली आई आउट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई मैक्सिमम हम किस तरह निकालेंगे? इस तरह की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बट वी हैव टू ड्रॉ हियर द इनपुट वेवफॉर्म ओनली। इनपुट करंट कब फ्लो होगा? जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है। तो ये इनपुट करंट फ्लो हो रहा है 18 एम्पियर से 22 एम्पियर तक, राइट। अब ऑफ पीरियड में ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो इनपुट करंट इज 0। दैट्स व्हाई वी हैव डन हियर इनपुट करंट 0 रहेगा यहां तक, एंड अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। Now we have to determine the diode current. Diode current इसी तरह निकालेंगे। जब डायोड करंट किस तरह निकालने? और दी ऑन पीरियड, जब ये स्विच ऑन है तो डायोड तो ऑफ है, ठीक है ना। जब ये स्विच ऑन है तो डायोड ऑफ है, जब ऑफ है तो डायोड के थ्रू करंट 0 होगा। दैट्स राइट। जैसे ही ये स्विच ऑफ हुआ, जैसे स्विच ऑफ हुआ
तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो अब वही अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि ये इंडक्टर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस माइनस की जगह पे यहाँ पर माइनस और प्लस आ जाएगा, एंड द डायोड करंट विल स्टिल कंटिन्यू टू फ्लो। तो डायोड करंट स्टार्ट यहाँ से होगी 22 एम्पियर से स्टार्ट होगी, बट इट विल डिके। तो डायोड करंट यहाँ पर जो भी एनर्जी ऑन में, ये एनर्जी यहाँ से स्टोर कर लिया, अब ये ऑफ हो गया तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, करंट विल फ्लो वाया दिस स्टोर्ड एनर्जी। तो डायोड करंट जहां पर इस एंड से डायोड करंट स्टार्ट होगा और इट विल टच टू दिस वैल्यू। इसके बाद फिर अगेन ये ऑन पीरियड है, ऑन पीरियड में डायोड इज डिस्कनेक्टेड, सो डायोड करंट इज जीरो। Please try to understand, although I have explained these things before the mid exam. ये क्या है? What is this? What is this? I have, okay. So this is the output current. The difference between the diode current and the output current. You will see output current जब स्विच ऑन है तो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है, I is equal to I out. जब ये स्विच ऑफ है तो इनपुट करंट तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है उसकी वजह से आउटपुट करंट विल स्टिल फ्लो। तो द आउटपुट करंट इज बेसिकली दिस करंट, ऑन करंट प्लस दिस करंट। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, वी विल एंड अप विद दिस। ये ऑन करंट है और ये ऑफ करंट है, एज वी हैव सीन बिफोर, बट and the average output current is basically 20 amperes. Okay. Power ने मैंने निकाला, power is equal to P is equal to I square R. Yes, P is equal to VI and P is equal to I square R. Power output लिखा है, please remember, means power output means इसमें कितना पावर है, I out square multiplied by R. Okay, I out 20 square R for 1600 watt is available at this output लोड। आउटपुट लोड में जो पावर है वो चूंकि 4 है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 का स्क्वायर, ठीक है। सो द पावर आउटपुट अवेलेबल एट लोड इज 1600 watt, remember this one. Now if the transformation is lossless, if the transformation is lossless, then क्या होगा? ओके, मीन्स बेसिकली अगर आप इसे थोड़ी सी लॉजिकल देखें, इसमें क्या हो रहा है, इनपुट पावर को कहाँ शिफ्ट, इनपुट पावर को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, आउटपुट में शिफ्ट करें। अगर ये इस शिफ्टिंग के दौरान, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कोई भी लॉसेस नहीं है, तो जो इनपुट पावर होगा वही आउटपुट पावर हो जाएगा। दैट्स व्हाई अगर हमें अस्यूम करें if the transformation is lossless means इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई लॉसेस नहीं है, तो और वी कैन से दैट दिस इज आइडियल कन्वर्टर, डीसी-डीसी कन्वर्टर। तो ये इनपुट पावर मींस वी आई और आई विल इक्वल्स टू आई आउट वी आउट, ठीक है। So if the transformation is lossless, then P input is equal to P output, and P output we already calculated 1600 watt, and the P in is equal to V in I in। अब यहाँ से शायद आप I in की वैल्यू निकाल सकते हैं। What is VI? VI was given 200, so 8 ampere। इनपुट करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर आ गया। ओके, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। वेयर इज नोड 1? नोड 1 ये है बेसिकली P1 पॉइंट 1 और नोड 1। इस नोड 1 में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, this is going towards the junction, this is also going towards the junction, but the only current coming out of the junction is I out. So I in plus ID is equal to I out. Okay, and ID is equal to I out minus II. I out is 20 ampere, II is
8 ampere. Of course, this is average 8 ampere, and this is 12 ampere. So the diode current is 12 ampere. और diode current हम इस तरह भी निकाल सकते हैं. Diode current is basically output current, as we have seen in the previous derivation. Diode current तो basically output current है, लेकिन it's the function of the off time. ठीक है ना? एंड चूंकि एवरेज निकालना है तो इस ऑफ टाइम को मैं टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा. वी विल एंड अप विद द डायोड करंट. इस इक्वेशन से भी आप डायोड करंट निकाल सकते हैं. आई एवरेज कितना है? 20 है. टी ऑफ टाइम 6 मिलीसेकंड है. टोटल टाइम 10 है. सो यू विल एंड अप विद 12 एम्पियर. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर. 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. सही है? 2 मिनट का ब्रेक. Recording. Eleven तक है क्लास.
10:15 से 11. Okay. Okay. So if you have any question, please. These are very simple, but what I understand कि अगर आप इसे तवज्जो नहीं देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ वाकई में आप इसे एक सेंटेंस में नहीं लिख पाएंगे। तो इसे समझने की कोशिश करें। These are just algebraic equations, no derivation, no integration, just simple mathematics. So it's based on the logic only, and these are good. So चैप्टर 9 के तमाम एग्जांपल्स आपको करने हैं। मैंने आपको चैप्टर 9 के 9.4 कराया, शायद एक दो और कराऊंगा। उसके बाद तमाम के तमाम एग्जांपल मैं हाल में 9 पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा कि कितने एग्जांपल्स करने हैं। ओके, सो दिस इज 19 स्लाइड नंबर 18। अब मुझे जाना है स्लाइड नंबर 19 पे। Okay, I have slide 19. Thank you. I was thinking that I don't have more slides. Okay, so 10 minutes to go. Lecture 19, boost. Oh, we are now move to boost converter and derivation. So last time we did the buck converter. Buck converter is basically the step down converter, and now we have to find out the we have to learn about the boost converter. A boost converter is a step up converter. What do you think? How I can get a boost converter? Number one. इसमें ये देखें how इसके अंदर सिंपल इज के बक कन्वर्टर में स्विच ऑफ हो जाता है कंप्लीटली। स्विच कंप्लीटली ऑफ हो जाते हैं और यस सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है सर, इसकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शो नहीं हो नहीं हो रही। रही आप। नो अच्छा सर, एक नहीं ओके 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 मे बी शायद हाँ मैंने चेंज कर दिया ना। ओके थैंक यू जस्ट डू इट। इसका मतलब आप लोग जाग रहे हैं। ये आपके पास लेक्चर है 19, yes this one. So hopefully you are getting this screen now. So lecture what I want to say कि boost converter आपके पास एक थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि यार ये बक कन्वर्टर स्टेप डाउन था, बूस्ट कन्वर्टर कैसे हासिल करेंगे। सो द सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज के बक कन्वर्टर में जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो इंडक्टर था सिर्फ, राइट। बक कन्वर्टर स्टार्ट होता है सप्लाई से, स्विच है, बीच में डायोड है और इंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं स्टोरिंग एलिमेंट को बढ़ा दूं तो शायद वी विल गेट द स्टेप अप वोल्टेज। The more the I mean it's not true always, but what I am saying I'm just creating an idea कि यार बक कन्वर्टर में थे एक स्टोरिंग एलिमेंट था, लाइक इंडक्टर था, और अगर इसके अंदर मैं एक और स्टोरिंग एलिमेंट बढ़ाता हूं तो probably we will get the boost converter, we will get the step up converter, although there are many other reasons but I just spoke one reason here. Okay, boost converter and its derivation, chapter 9. In the buck converter, only one storing element, inductance, was used, while in the boost converter, an additional storing element, capacitor, is also used in such a way that the output voltage becomes higher than the input voltage. Arrangement is also important. तो हमने यहाँ पर इंडक्टर भी यूज किया है और कैपेसिटर भी यूज किया है, right? These two elements. So how we arrange these things? बूस्ट कन्वर्टर इन द बक कन्वर्टर ओनली वन। अच्छा ये तो मैं पहले शायद इस कॉपी है, तो यहाँ पर आप ये देखें, इस जगह आप ये देखें
कि यहाँ पर इस सर्किट में इंडक्टर भी यूज हो रहा है और कैपेसिटर भी यूज हो रहा है, ठीक है। I just mentioned here. This is the symbolic diagram. Of course, in symbol diagram, we cannot place the actual figure or actual picture of the inductor or the coil or the capacitor. So this is the circuit, the fundamental circuit of the boost converter. In this circuit, what I will say, we are using two storing elements, the inductor and the capacitor is, and the circuit arrangement is in this way. पहले यहाँ पर switch था, यहाँ पर diode था. Now these things are changed here in the book, in the boost converter. So now the important thing is that we have to understand its working principle. Again, we are using here switch. Always we have to use switch. क्योंकि हमने DC-DC कन्वर्टर में जब हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द हिस्ट्री, वी नो कि DC-DC कन्वर्टर में जो ट्रांजिस्टर है उसे आपको सैचुरेशन में और कट ऑफ में ही ऑपरेट करना है. इसका मतलब ऑलवेज यू हैव टू यूज द स्विच. Here I have used this switch is basically a transistor, and this is known as the IGBT, insulated gate, IGBT, insulated gate bipolar junction transistor. So we will learn something about the IGBT in the next lectures, but for the time being, this is a transistor similar to the BJT. It operates, it has the source and the drain. So the drain and the source, and this is the gate. And like the BJT transistor, BJT ट्रांजिस्टर में हम यहाँ पे इसके बेस पे पल्स प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर भी दिस इज नॉन एज द गेट. तो गेट पे यहाँ पर स्क्वायर वेव पल्स प्रोवाइड करें. एंड वी नो हाउ द पल्स इज जनरेटेड बाय यूजिंग द पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक. ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी हैव स्टडीड. अगर आपको याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आप इसको रिव्यू करें. हमने सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है. सो दिस इज सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये डीसी डीसी कन्वर्टर है. यू विल से इट्स अ डीसी डीसी कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग एज अ स्विच. इस पल्स पे ऑन हो जाएगा, इस पल्स पे ऑफ हो जाएगा. ओके. एंड वी हैव इंडक्टर, वी हैव. सो लेट्स नाउ वी स्टार्ट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सर्किट. पहले तो आप ये देखें कि इनपुट डीसी वोल्टेज है, ये प्लस है, ये माइनस है. जब ये प्लस होगा तो करंट इस तरह फ्लो होगा. I is the input current, that is the current due to the supply VI. और इसके बाद यहाँ पर डायोड करंट है, डायोड करंट थ्रू द डायोड. ये आउटपुट करंट है जो कि लोड पे जा रहा है. एंड दिस इज द कैपेसिटर करंट जो कि कैपेसिटर पे जा रहा है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशन बाय यूजिंग स्विच ऑन duration, by having switch on duration and switch off duration. Okay, now ये क्या दोबारा है? Let's see. ये वही चीज है, ये मेरे ख्याल रिपीट हो गया है. Okay, boost converter equivalent circuit. First, develop an idea for a step-up converter when switch. Okay, so this is the switch on. It behaves as a short circuit. When the switch is on, this becomes a short circuit, right? तो हमने क्या किया, इसको वही चीजें रखी. ये स्विच ऑन है तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. और स्विच ऑन है तो ये प्लस सप्लाई, बेसिकली प्लस सप्लाई इज प्लस सप्लाई. यहाँ से पीपल्स आर वेटिंग इन द लॉबी. ओके, who are waiting in the lobby? I have to take now attendance for the second half. So the time for the attendance, download attendance list. तो स्विच ऑन सिंपल है, स्विच ऑन है, शॉर्ट सर्किट हो गया. ये चूंकि सप्लाई है, प्लस सप्लाई की वजह से ये डायोड रिवर्स बायस.
क्या कह रहा हूँ मैं, इस प्लस, व्हाई द डायोड इज रिवर्स बायस प्लस, तो यहाँ पर है, ये जब स्विच ऑन हो गया तो दिस बिकम्स शॉर्ट सर्किट, इट मींस ये पॉइंट ग्राउंड हो गया, 0 वोल्ट हो गया। जब ये पॉइंट ग्राउंड है, ये पॉइंट ग्राउंड हो गया, इसका मतलब डायोड पे वोल्टेज 0 हो गए एनोड पे, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। सो डायोड इज डिस्कनेक्टेड एंड देन वी हैव ओनली 2 circuits. It looks like in the on period we have 2 independent circuits. Number one is the circuit with the inductor with the inductor inside, and the circuit with the capacitor inside. In this case, V out equals to capacitor voltage, क्योंकि दोनों parallel में हैं, और इस केस में V input equal to inductive load क्योंकि दोनों parallel में हैं. Okay, हम यहाँ पर ये okay, so when switch it behaves as a short circuit. Yes, looks like input and output are 2 independent circuits. Input and output looks like 2 independent circuits. We have to understand something. Let's suppose करें कि ये तो मैंने फर्स्ट ऑन साइकिल ली ना, इससे पहले भी बहुत सारी ऑन साइकिल आई होंगी। इस ऑन साइकिल की वजह से लेट्स सपोज कर लेते हैं, वी अस्यूम कि कैपेसिटर वाज चार्ज्ड। इसकी प्रीवियस साइकिल में हम ये अस्यूम कर लेते हैं कैपेसिटर चार्ज, एंड वी विल सी इट लेटर ऑन कि कैपेसिटर चार्ज होता है। अगर ये कैपेसिटर किसी भी वजह से पिछली साइकिल में इस ऑन से पहले, अगर ये ऑन है जिससे पहले भी ऑन है, ये ऑन है जिससे पहले भी ऑन है, इस ऑन से पहले या ऑफ के दौरान अगर ये कैपेसिटर चार्ज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज है, तो कैपेसिटर इज प्रोवाइडिंग करंट टू द लोड। कैपेसिटर एक्ट्स एज अ टेम्पररी वोल्टेज सोर्स, तो ये कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये कैपेसिटर से करंट आउटपुट लोड पे इंजेक्ट हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनपुट करंट ड्यू टू दिस सप्लाई, इनपुट करंट इज एनर्जाइजिंग दिस इंडक्टर। तो यहाँ पर ऑन पीरियड में दो काम हो रहे हैं। नंबर वन के इनपुट करंट एनर्जाइज कर रहा है इंडक्टर को, एंड नंबर टू किसी भी वजह से जब कैपेसिटर चार्ज था, ये कैपेसिटर आउटपुट करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑल दो, तो इसका मतलब ये है कि ऑल दो इट लुक्स लाइक कि ये सप्लाई, ये जो पार्ट है इससे इनपुट सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग द आउटपुट करंट आई आउट बिकॉज ऑफ द चार्ज एट द कैपेसिटर। Assume if the C was full charged in the previous cycle, then it will continue to provide current to the output load. Yes. Simultaneously, the input current energizes the inductor. इसी ही टाइम पे simultaneously means at the same time ये आउटपुट करंट जनरेट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये सप्लाई इनपुट करंट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। अच्छा, एक चीज और, इस कंडीशन पे आप कह सकते हैं कि ये एनर्जाइज हो रहा है, मींस इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और इस कंडीशन पे इसमें से जो एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडिंग करंट टू द लोड। इट मींस के इसके चार्ज कम हो रहे हैं, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। सो देयर आर टू फंक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। द इंडक्टर इज एनर्जाइजिंग, इट मींस इट्स गेटिंग एनर्जी, इट्स स्टोरिंग एनर्जी, and at the same time the capacitor is discharging, right? Simultaneously the input current energizes the inductor, thus during on period capacitor discharges to supply output current to the load। capacitor discharge हो रहा है output current को supply करने के लिए, and inductor energizes to store energy। ये शायद मैंने दोबारा लिख दिया। अब आप आ जाएं ऑफ पीरियड में। So I hope you understand the operation of the circuit in the on period. The bottom line is कि on period में दो डिफरेंट काम हो रहे हैं। कैपेसिटर जो कि पहले चार्ज था वो डिस्चार्ज हो रहा है एंड इज प्रोवाइडिंग करंट टू द आउटपुट लोड, और इनपुट में इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज हुआ था और ये करंट एनर्जाइज कर रहा है, इसको इज गेटिंग एनर्जाइज
is getting discharged. अच्छा, अब ऑफ पीरियड में आ जाए। ऑफ पीरियड में क्या होगा? व्हाट इज ऑफ? ऑफ का मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। ट्रांजिस्टर जब ऑफ हो गया है तो यहाँ पर this is disconnected. Okay, so this is the transistor is disconnected here. ठीक है, ट्रांजिस्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा? इस पहले साइकिल में पहले ऑन पीरियड है, इसके बाद ये ऑफ पीरियड है। ऑफ पीरियड से पहले क्या था? ऑन पीरियड था। ऑन पीरियड में ये फुल एनर्जाइज हो चुका है, क्योंकि दिस इज गेटिंग एनर्जाइज्ड। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस ऑन पीरियड में ये फुल एनर्जाइज हो गया है और ऑफ में इसे डी एनर्जाइज होना है। कैसे डी एनर्जाइज होगा? जैसे ये ऑफ पीरियड है, ये शॉर्ट सर्किट खत्म हो गई। अब इसे चूंकि अब इसे चूंकि इसका पाथ ये खत्म हो गया, डी एनर्जाइजेशन का, एनर्जाइजेशन का पाथ खत्म हो गया। व्हाई इट वाज एनर्जाइजिंग? क्योंकि ये इसे पाथ मिल रहा था, इसकी वजह से एनर्जाइज हो रहा था। सही है। अब ये जैसे ही हमने इसे ऑफ किया तो ये एनर्जाइजेशन का पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये डी एनर्जाइज होगा, तो पीक पे ये एनर्जाइज हो चुका है। अब ये डी एनर्जाइज होगा। जब ये डी एनर्जाइज होगा, पहले इसकी पोलैरिटी चार्ज के वक्त प्लस माइनस थी और डी एनर्जाइज में इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस हो जाएगी। अब आप देखें इस पे क्या कंडीशन हो गया, क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या नहीं है? अब आप देखें ये डायोड, चूंकि ये पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो गई, ये प्लस आ गई है, तो डायोड ये प्लस आ गई है, तो डायोड हैज टू एनर्जाइज, डायोड हैज टू फॉरवर्ड बायस, तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज देखें, तो डायोड का पता चल गया, शॉर्ट सर्किट हो गई। ये पता चल गया कि इंडक्टर के क्रॉस तो वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर एनर्जाइज हुआ था, अब यहाँ पर इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो इट हैज टू डी एनर्जाइज, नंबर 1। अच्छा, अब आप देखें ओवरऑल वोल्टेज कितने, ये टेम्पोररी वोल्टेज है, स्टोरेज टेम्पोररी, एंड दिस इज द परमानेंट सप्लाई। परमानेंट सप्लाई ये है, और एक ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। अब इस ये सप्लाई, दोनों सप्लाई क्या ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? वी हैव टू सी। देखें इसकी पोलैरिटी माइनस है, प्लस है, इसके बाद ये माइनस एंड प्लस। व्हेन यू कनेक्ट टू बैटरीज विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बैटरीज, ये दोनों सप्लाईज ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सप्लाईज ऐड हो रहे हैं। तो ये इनपुट और ये इंडक्टर वोल्टेज दोनों डिफरेंट सोर्स है, ये परमानेंट सोर्स है, ये टेम्पररी सोर्स है, लेकिन दोनों इस पोलैरिटी की वजह से माइनस प्लस, तो दोनों ये सीरीज में है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे। अब एड अप होके यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया? लेट सपोज जब ये एनर्जाइज हुआ था, लेट सपोज ये 10 वोल्ट है, लेट सपोज मैं आपको आसानी के 10 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट। तो जब ये एनर्जाइज हो गया तो इसके क्रॉस लेट सपोज कि ये भी 10 वोल्ट आ गए। तो लास्ट मोमेंट जब ये 10 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, हाउ मच देयर विल बी प्लस 20 वोल्ट, एंड दिस प्लस विल मेक दिस डायोड फॉरवर्ड बायस। ठीक है। अब यहाँ पर अब ये जो करंट फ्लो, यानी कि यहाँ पर दो सप्लाई आ गए, ये और ये, इन दोनों की वजह से वोल्टेज ऐड हो गए। ऐड होने की वजह से जो इनपुट करंट है वो डायोड करंट बन जाएगा, और डायोड करंट इज बेसिकली some part of the diode current is charging the capacitor and some part of the diode current is injecting through the output load. तो ऑफ पीरियड में, ऑन पीरियड में दोबारा बता दूं, ऑन पीरियड में क्या हो रहा था? ये एनर्जाइज हो रहा था, ये डी एनर्जाइज हो रहा था, ये डी डिस्चार्ज हो रहा था। ऑफ पीरियड में ये डी एनर्जाइज चूंकि ऐड हो गए, ऐड होने के बाद यहाँ पर सप्लाई डबल हो गया है। अब जाहिर बात है जब ये करंट फ्लो होगा तो ये डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा, तो ये डी एनर्जाइज होना शुरू हो गया। लेकिन इसकी डी एनर्जाइजेशन की वजह से जो करंट कन्वर्ट हो रही है, वो करंट कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, तो कैपेसिटर इज चार्जिंग। वंस अगेन इस स्टेटस में इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था, कैपेसिटर डी एनर्जाइज हो रहा था। इस स्टेटस में
इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है और कैपेसिटर एनर्जाइज हो चार्ज हो रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द पोलैरिटी। यहाँ पर जब करंट डिस्चार्ज हो रहा था करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और जब ये चार्ज हो रहा था करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एनी क्वेश्चन? ड्यूरिंग ऑफ डी फॉरवर्ड बायसेस, ये मैंने जो बताया है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इन टर्न इंडक्टर डी एनर्जाइज, ये मैंने आपको बता दिया। I think I will take few more minutes in order to complete this one. So now we have to draw the waveform. हमने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ ली। इक्विवेलेंट सर्किट में अब ये हमने ये ऑन पीरियड लिया है, इसमें हमने क्या करना है कि ये पल्सेस एट गेट ऑफ आईजीबीटी, ये जो आईजीबीटी था, हाँ आईजीबीटी, ये आईजीबीटी पे जो पल्स है ना, ये मैंने लिखा है। अगर हाई होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, लो होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो यूजिंग द सेम फेनोमेना we have to draw the pulses at gate of IGBT। ये ऑन पीरियड है, IGBT पल्स है, IGBT ऑन है, ये ऑफ है, ऑन है, ऑफ है। You must have to synchronize the next waveform with this straight lines। तो ये आपके पास एक टाइम पीरियड आ गया, and this is the second time period। I switch ड्रॉ कर रहे हैं। Where is I switch? I means current through the switch when this switch is on। इस पीरियड में देखना है करंट स्विच के थ्रू कितना गुजर रहा है। तो इस पीरियड में, ऑन पीरियड में, स्विच शॉर्ट सर्किट है तो करंट गुजरेगा एंड द करंट विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन करंट किस वेव फॉर्म में होगा? चूंकि डीसी इज कनेक्टेड विद इंडक्टर, तो ये रैम्प की फॉर्म में इट slowly and gradually it will energize the inductor and the current will start to flow from this minimum value to the maximum value, as we have seen in previous example। Off period में switch current कितना है? Off period में, off period switch disconnected है, तो इसका मतलब है switch current 0 है, ठीक है, and things is continue। Second is diode current। Where is the diode? Diode current हमें ड्रॉ करना है पहले ऑन पीरियड के लिए। वेयर इज द डायोड? ऑन ये है, यहाँ तो डायोड है ही नहीं। okay, डायोड इज देयर, डायोड है नहीं तो यहाँ पर डायोड करंट 0 होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। सो दैट डायोड करंट इज 0। इसके बाद फिर डायोड करंट स्टार्ट कहाँ से होगा? चूंकि ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ये डायोड फॉर एग्जाम्पल फ्लो होते होते यहाँ पर लास्ट मोमेंट में 10 एम्पियर आ गया। अब ये स्विच की स्टेटस चेंज हो गई है और ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ से जो करंट डायोड को फ्लो होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 एम्पियर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वो 10 एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है तो ये 10 एम्पियर से लास्ट, तो डायोड करंट विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, तो लास्ट रैम्प डाउन हो रहा है। व्हाई इट इज डायोड करंट इज गेटिंग डाउन? क्योंकि ये एनर्जाइज था फुल इस ऑन पीरियड के एंड पॉइंट पे। ऑन पीरियड के एंड पॉइंट पे ये इंडक्टर फुल एनर्जाइज हो गया था। अब क्या हो रहा है कि ये ऑफ पीरियड स्टार्ट हो गया। ऑफ पीरियड में ये सीरीज में आ गए हैं एंड दिस हैज टू डी एनर्जाइज। जब डी एनर्जाइज होना है तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कैपेसिटर को, लोड को। तो इसका मतलब है कि इसके थ्रू जो करंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसके थ्रू करंट कम होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है डायोड के और आई, तो डायोड करंट यहाँ पर डिक्रीज हो रही थी। थिंग्स इज कंटिन्यू लाइक दिस वन। एंड द सेकंड लास्ट इज आई आउटपुट। आई आउटपुट क्या करेंगे? आई आउटपुट इज बेसिकली, क्या ऑन पीरियड में आउटपुट है? ऑन पीरियड में आउटपुट करंट है, चूंकि कैपेसिटर फुली चार्ज था तो
आउटपुट करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आउटपुट करंट इंक्रीज हो रहा है। ऑफ पीरियड में क्या आउटपुट है, इस ऑफ पीरियड में आउटपुट बेसिकली यही डायोड करंट है, सो दिस डायोड करंट विल कम हियर। और ऑन पीरियड में व्हाई इट इज इक्वल टू आई स्विच, आई मीन क्योंकि ये नहीं, ये मैंने आई स्विच की वेव फॉर्म ड्रॉ की ना, ओके ओके। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आउटपुट करंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? कैपेसिटर पहले फुली चार्ज था, अब इसके बाद वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, तो करंट वोल्टेज तो यहाँ पे गिरने लगेंगे, लेकिन करंट यहाँ पर इंक्रीज होने लगेंगे, ठीक है। और इस केस में ऑफ पीरियड में दोबारा, ऑफ पीरियड में दिस इज ऑफ पीरियड में चूंकि करंट स्टार्ट यहाँ से होगा 10 एम्पीयर से, लेकिन अब ये डीएनर्जाइज हो रहा है, तो इस वजह से आउटपुट आईडी करंट या आउटपुट करंट आल्सो गोइंग टू डिक्रीज। थिंग्स विल कंटिन्यू विद दिस वन, एंड आई थिंक द लास्ट ग्राफ हमें इंडक्टर वोल्टेज का ड्रॉ करना है। इंडक्टर वोल्टेज वी नो वेयर इज इंडक्टर वोल्टेज इज दिस वन। ऑन पीरियड में इंडक्टर वोल्टेज कितने होंगे? इक्वल्स टू, ऑन पीरियड में देखें इंडक्टर इज इन पैरेलल विद दिस सप्लाई, ठीक है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही इंडक्टर वोल्टेज होंगे, ठीक है। एंड इंडक्टर वोल्टेज इज प्लस है, और जब ये ऑफ होगा, ऑफ में इंडक्टर वोल्टेज कितने हो जाएंगे? ऑफ पे इंडक्टर वोल्टेज की, ऑन पे प्लस माइनस पोलैरिटी है, ऑफ पे माइनस प्लस पोलैरिटी होगी, कोई यहाँ पे डी एनर्जाइज हो रहा है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन नीचे आई है, ठीक है। ओह, आई हैव 2 more slides, sorry. Now the capacitor voltage. Capacitor voltage. Why the capacitor voltage starts with this point? Where is the capacitor voltage? On period. On period कहाँ है? ये on period है. Where is the capacitor? This is the capacitor. और capacitor ये, तो जो कैपेसिटर करंट है, इनिशियली ये फुल चार्ज होगा, उसके बाद ये कैपेसिटर करंट फ्लो होता है। हेलो, कैपेसिटर करंट चूंकि जैसे जैसे ये डी एनर्जाइज हो रहा है, वैसे वैसे कैपेसिटर करंट आप नेगेटिव में, the capacitor current is increasing in the negative direction, ठीक है। why it is first, why it is in the negative, why it is not here? इसकी वजह ये है कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट इज अपवर्ड, तो करंट को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस सप्लाई की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो करंट जो कूलम्स जो है ना, वो इनसाइड इलेक्ट्रोड्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो इफ द कैपेसिटर इज गोइंग डिस्चार्ज, तो ये करंट नेगेटिव साइड पे आएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज डिस्चार्जिंग? क्योंकि कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर है वो क्या कन्वर्ट हो रही है आउटपुट करंट में। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इसकी करंट इंक्रीज होती रहेगी। यू नो, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है तो करंट 0 होता है, अब जैसे जैसे करंट कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वैसे वैसे करंट उसकी इंक्रीज होगी। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज लिटिल बिट डाउनवर्ड। अब ये ऑफ पीरियड में व्हाई द कैपेसिटर करंट इज ऑन द पॉजिटिव साइड? ऑफ पीरियड में कैपेसिटर करंट इज इंजेक्टिंग इनसाइड इलेक्ट्रोड, ये कैपेसिटर करंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट से डिस्चार्ज होकर के 5 वोल्ट आ गया, अब यहाँ से 5 वोल्ट से दोबारा ये चार्ज होगा, जब 5 वोल्ट से चार्ज होना शुरू होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे 5 से 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, यहाँ पर जाके करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड द लास्ट वेव फॉर्म इज दिस वन। व्हाट इज दिस? ये आउटपुट कैपेसिटर वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज is basically the capacitor voltage because both are in parallel. जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज is basically the capacitor voltage. In both the case both are parallel. इस वजह से हमने लिखा है आउटपुट वोल्टेज is equal to VC
and VC is equal to input plus VL. Why it is input plus VL? Hmm. Hmm. इनपुट प्लस VL, यहां पर देखें इस जगह पे ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज कितने होंगे, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो कैपेसिटर वोल्टेज होंगे वो इस पॉइंट पे देखें, ये वोल्टेज एंड ये वोल्टेज दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज विल बी V in प्लस VL, ठीक है। इट मींस जो आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितने हैं, एक है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, 10 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट ये प्लस 10 वोल्ट ये, आउटपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट, दैट्स व्हाई वी से दिस वन इज अ स्टेप अप कन्वर्टर। रिमेंबर वंस अगेन, आउटपुट वोल्टेज ये है आपके पास, ये आउटपुट वोल्टेज इस कंडीशन में कौन कौन से वोल्टेज इसमें है, दिस प्लस दिस, तो ऑफ कोर्स आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज रिटन आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर ये ऑन पीरियड में वाइट इज गोइंग डाउन, ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया जाए, वेयर इज ऑन पीरियड, ये वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, इस वोल्टेज ऑन पीरियड ये है, इसमें आउटपुट वोल्टेज ये है, द कैपेसिटर इज गोइंग टू डिस्चार्ज, कैपेसिटर करंट इसको प्रोवाइड करे तो कैपेसिटर के वोल्टेज डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने शुरू हो गए, तो इस वजह से जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो यहाँ पे ऑन पीरियड में डाउन की तरफ मूव हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही ऑफ पीरियड आ गया, ऑफ पीरियड ये आ गया, इस ऑफ पीरियड में कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो गया है इन सप्लाई की वजह से, इन दोनों सप्लाई की वजह से, द कैपेसिटर अगेन इट स्टार्टेड टू चार्ज मोर, so this is the direction of, काफी है। एनी क्वेश्चन, आई हैव फिनिश्ड दिस वन, एनी क्वेश्चन, कोई जाग रहे हो, अभी मैं एक और अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे एवरेज में आसानी हो जाए, अटेंड दिस आर, यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज, आप बताएं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर बोले भाई। ये VL समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि जैसे हमारी सप्लाई तो कॉन्स्टेंटली वहां पे कनेक्ट है ना, तो VL डी एनर्जाइज कैसे हो रहा है, सप्लाई तो ओके हमारी ओके, वहां दैट्स पे। गुड, दैट्स गुड क्वेश्चन। देखिए वी वी आई तो कांस्टेंट है ना, लेट्स कम, आप कहाँ बात कर रहे हैं, सो आप शायद इसकी बात कर रहे हैं, नहीं आप नेक्स्ट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, VL की सर, VL की, वीएल, वीएल मींस ये, डी एनर्जाइज पे जाना। यस सर, हम्म, यस सर, इसकी यही है। बात कर रहे हैं, यस अच्छा सर, इस, सर आपको इंडक्टर आपको मेरे कर्सर नजर आ रहे हैं, कर्सर नजर आ रहा है आपको, यस सर, कर्सर नजर आ रहा है, अच्छा आप इसकी जी बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल सर। अच्छा आप ये कह रहे हैं ये क्यों कांस्टेंट है, या आप ये कह रहे हैं ये नहीं क्यों सर, प्लस, ये डी एनर्जाइज क्यों हो रहा है जब हमारी सोर्स तो वहां लगी हुई है ना सर। अच्छा दी ओके, देखिए मैं आपको इसको दोबारा बताऊं कि जब स्विच ऑन है तो ये आप ये देखें कि ये कंप्लीट, ये यहाँ पे 0 वोल्ट है, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस 10 वोल्ट की सप्लाई है तो इसके एक एंड पे 10 वोल्ट है और दूसरे एंड पे 0 वोल्ट है, तो ये फौरन एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा, फौरन यस सर, एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, जी सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा अब मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो क्या एनर्जाइज होना शुरू होगा, सर नो सर, नो, दोनों सर क्योंकि देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस, नो वोल्टेज डिफरेंस, नो करंट विल फ्लो, जब नो करंट विल फ्लो, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्रिएट नहीं होगी, तो
एनर्जाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखें, आपका क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ तो आपको समझ आ गया कि इस कंडीशन पे ये एनर्जाइज हो रहा है क्योंकि ये वाली एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यस सर। अब ये वाली एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है, ये वाली एंड इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी वोल्टेज मौजूद हैं। सही सर। और और आपने भी कैलकुलेशन में देख लिया, ये आउटपुट, ये सब बूस्ट कन्वर्टर, इस आउटपुट में जो वोल्टेज है वो यहाँ से ज्यादा ही है, कम नहीं है। जी सर। समझ में सही आ है सर, गया। समझ आ तो गया। यहाँ पर तो यस सर। कम वोल्टेज है, यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज, तो ये इट हैज टू डी एनर्जाइज। सही है सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? मैंने शायद टाइम ज्यादा ले लिया, आई मस्ट हैव टू स्टॉप दिस वन। चीजें भी है तो ओके, क्लास इज ओवर। Stop recording. Stop recording.